Good afternoon, friends. Welcome to the webinar series for the Creative Tribe. Stay creative, stay ahead, even in the pandemic time. This is an initiative to promote the work of My Work, My Right, brought to you. We have been living in uncertain times, and in the last 1 month, we've seen how individuals, entrepreneurs, businesses, and governments are finding it difficult to answer to the challenges brought by COVID-19. We are with so much uncertainty, we need to find ways to keep things light. Fortunately, the creators, designers have pretty great track for turning the problems into possibilities. But with that, the creative community today to make it positive in the time of crisis. So we are I having. read one comment, Narendra Jha, Jadeja. He can't join. He can't hear. The audio is not clear. Anjula, your voice is not clear. So can you keep the microphone closer, please? Is this better? Keep the microphone a little closer. Now? A little better. Better now? Yeah, better. I can hear you. All right. Okay. Thank you. And so what we are going to do is we're going to, the session today is with Mr. J.D. Majetia. And I don't think he needs an introduction. He in himself is a great personality. That we will be having a moderating session done by Ms. Prapti Shah. And I would call upon Prapti Shah, who has been comparing various type of events, corporate events, the conferences, the seminars, etc. So Prapti, with this brief, I would like to call upon you and request you to move it ahead with Mr. Majetia on the Stay Creative, Stay Ahead series. Thank you, Anjula ji, and thank you, IPPO, for this great opportunity. And hello, welcome everyone to this webinar. Stay creative, stay ahead, even in pandemic time. जैसे कि हम सब जानते हैं, ये जो पीरियड है हम सब के लिए थोड़ा बहुत नर्वस फील कराता है, लेकिन फिर भी क्रिएटिव इंडस्ट्री और जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी है. तो हम कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाते और पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सकते हैं, उसके बारे में इस वेबिनार में हम बात करेंगे. और जैसे कि आप सब जानते हैं, लेट मी नॉट टॉक मच, लेट मी इनवाइट जिनका बहुत बेसब्री से हम इंतजार करते हैं, ऐसे सर जेडी मजेठिया सर. આપણે બધા જ જાણીએ છીએ બહુ જ મજાના એક્ટર, ડિરેક્ટર, પ્રોડ્યુસર છે અને એમની ઘણી બધી હિન્દી, ગુજરાતી સિરિયલ્સ, ડ્રામા, ફિલ્મ્સ આપણે જોયા છે બહુ. અને સર આજે આપણી વેબિનાર છે એ સિરીઝની અંદર ઘણું બધું તમારી પાસેથી શીખવાનું છે, પણ સાથે સાથે કેટલીક યાદગાર સિરિયલ્સ અને ફિલ્મના ડાયલોગ્સ પણ અમે સાંભળવાના છીએ. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વેલકમ ટુ યુ વન્સ અગेन. और सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि ये जो लॉकडाउन पीरियड है कैसा चल रहा है, ये 40 दिन का जो समय है कैसे पास किया, ग्रेजुअली क्या क्या फील किया आपने? ये जैसे दो शब्द में कहूं लॉकडाउन, तो वो लॉकडाउन है, वैसे ही चल रहा है. बट आई वुड से दैट माय जर्नी, I have a little more experience than most on this platform today to how to survive, because मैंने जिंदगी में एक अच्छा शो किया था, मेरी जिंदगी का, जिसको मैं बेहतरीन एक्सपीरियंस मानता हूँ, जिसका नाम था सर्वाइवर इंडिया. ये सर्वाइवर इंडिया क्या है? यूएस में एक शो है, सीरीज है सर्वाइवर, और जो है वो है बिग बॉस, जो बिग ब्रदर वहां चलती है, जहाँ हमका बिग बॉस का मजा लेते, उससे काफी बड़ी है. और इट्स not just about fighting and the way we have seen Big Boss. It's much deeper there and it is more adventurous. तो मैंने 2010-11 में एक शो किया था जिसका नाम है सर्वाइवर इंडिया, और वहां पे हमको एक आइलैंड पे छोड़ दिया था. आगे समुद्र, पीछे जंगल, जंगल में सांप होते थे, और हमको ट्रेन किया गया था, वेनम वगैरह का एक सेट दिया गया था कि अगर हम में से किसी को अगर सांप ने डस लिया तो हम
किस तरह हमारे उस साथी की मदद करे और 20 मिनट में किस तरह एक हेलीकॉप्टर आएगा और हमें वहां से एयरलिफ्ट करके अस्पताल तक, फिलीपींस के पास था तो फिलीपींस तक ले जाएगा। वो 20 से 30 मिनट की ट्रेनिंग दी गई थी हमको, ये इतना सीरियस था। आगे समंदर था, समंदर में पानी बहुत था लेकिन इतना बूंद भी पी नहीं सको, वैसा था। और मैंने वहां 52 डेज निकाले थे उस आइलैंड पे, 7 दिन उसके पहले। तो जहां से मुझे ये हैट मिली, क्या था, सभी को एक एक हेड गियर दिए गए थे, तो मुझे बोला था चूज करो आप, तो बाकी सबने ले लिए थे, तो मैंने बोला क्या बचा है, तो बोला सर एक हेड बची है, तो बोला दे दो, तो वहां से हैट आई है। तो ऐसा है कि उसके बाद आज तक ये हैट रह गई। आई फील इनकम्प्लीट विदाउट माई हैट। अभी मैं घर में ही बैठा हूँ ना, अभी तो कहीं बाहर नहीं गया हूँ। ब्यूटी देखिए, ये अब तो बाहर नहीं गया हूँ ना, घर पे बैठा हूँ मैं, पर घर पे भी ये हैट पहन के बैठा हूँ। पर आई नो राइट नाउ मैं घर पे होते हुए भी आप सबके बीच हूँ, दैट्स व्हाई द हैट इज देयर। बट ये शो में मैंने जो 45 दिन वो आइलैंड पे, हमारे पास तो मोबाइल है, फिलहाल घर का खाना है, हम अपने घर में तो घूम सकते हैं, छांव है, ये जितनी भी चीजें वहां, ये सारी चीजें जाने दो। सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े थे जो हम ही को समंदर के पानी में धोना था, और 1 बोतल 2 बोतल पानी मिलता था पीने का, उसी में हम लोग स्पंज कर लेते थे, नहा लेते थे, समंदर में नहा लेते थे। और एक नेपकिन रहता था हमारा, हैंडकरचीफ, मेरे पास रुमाल था फॉर्चुनेटली, तो उसी को गीला करके नहाते थे। और खाने में बहुत मजे थे। इतना एक मुट्ठी चावल मिलता था, इतना मुट्ठी चावल नहीं, एक जो नारियल की कटोरी को काट के आधी बनती है, उसमें चावल मिलता था और उसमें नमक भी नहीं होता था। So why I shared this, so you all feel we begin on a very good note that you all are living a luxurious life than what I have lived. Lockdown उसे कहते हैं। So it's a far better situation. लॉकडाउन तो बहुत अच्छा, हम सबको लगता है कि अच्छा, काफी दिनों के बाद ऐसा माहौल मिला है घर में रहने का, घर के लोगों के साथ रहने का। सर क्रिएटिविटी की बात करें तो इन दौरान आपकी क्रिएटिविटी की जो यात्रा है वो कैसी चल रही है? ब्रिलियंट। मैं इतना ओवर ऑक्यूपाइड मेरी जिंदगी में नहीं रहा हूँ जितना मैं अभी हूँ। मैं रात को लेट सोता हूँ, करीबन सोते सोते 1-1:30 बजे था, लेकिन दैट टाइम आई वॉच माय ओटीटी एंड ऑल 10:30 ऑनवर्ड्स। आई रिटायर एट 10:30। मैं 10:30 तक ऑलमोस्ट थोड़ा काम करता हूँ, तो 10:30 से 12:30-1 को मैं रिटायर होता हूँ, वापस काम चेक करता हूँ, आधा घंटा मेरा उसमें जाता है। एंड मॉर्निंग आई एम अप बाय 8:30 एंड देन लाइंग इन माय बेड, आई प्लान माय डे। सो वहां से मेरा काम शुरू हो जाता है। क्रिएटिविटी का मेरे लिए ना बहुत सारी व्याख्या, डेफिनेशन बदल गई है। What I've realized that we can create on many aspects and it's for everybody. जैसे मेरा काम तो, मैं professionally we have always been involved with creative work only, where we have created subjects, and I felt we were restricted and we had limited ourselves to create few things professionally. Right now every human is creative and can create various things, be it professional or be it helping of mankind. People who are in trouble right now, उसके लिए भी आप कुछ काफी क्रिएट कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी का वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन इस दौरान किया है, जिसका नाम है फैन का फैन इंडिया। एक इनिशिएटिव लिया है मैंने। वो फैन का फैन इंडिया का क्रिएशन मुझे 1 महीना लगा, पर टुडे आज आया हुआ वेबसाइट जहाँ पे ऑलरेडी मोर देन 8 or 10 days there are more than 10,000 people who visited that website. और वो, I'm not a very techno savvy person, मैं तो, मेरा ज्यादा काम मेरे स्टाफ वाले ही संभालते हैं, सेक्रेटरी हैंडल्स मोस्ट ऑफ द वर्क। तो मैं काफी कबार उसको ये भी पूछता हूँ कि वो फेसबुक पे ये मैंने डाल दिया, उसको एडिट कैसे करूँ। ये गलत, यानी मुझे इतना बेसिक भी नहीं आता था पहले, सारा काम स्टाफ करता था, मेरा ध्यान कुछ और जगह पे रहता था। पर दिस फेज इंडिपेंडेंटली आई हैव लर्नड मेनी थिंग्स एंड एज आई सेड, मैंने क्रिएट किया ये कॉन्सेप्ट फैन का फैन इंडिया। मैंने एक पोएम लिखी थी और वो पोएम काफी कलाकारों ने, बहुत लोगों ने शेयर करी है, एंड जिसका टाइटल था पूरा देश है हमारा परिवार, एक कलाकार की व्यथा है। 1-2 सब्जेक्ट्स मैंने बनाए, वो किस तरह के सब्जेक्ट्स बनाए जो आने वाले दौर में क्या होगा, तो अपने प्रोफेशन से जुड़ा रहा। मैंने कुछ खाने की डिशेस बनाई और वहां कुछ सीखा मैं, और मैंने काफी छोटी छोटी चीजों में मैं क्रिएटिव रहा हूँ, और मैं अपने आप को चैलेंज करता हूँ। I challenge myself कि एक मिनट, let me go out of my comfort zone and create something. So I have taken writing a lot
बीच में मैं नहीं लिखता था। अच्छा, ऐसे भी ज्यादातर लोगों को ऐसा है कि मैं लिखता हूँ, मुझे ये क्लियर करने में बड़ा अच्छा लगेगा। मेरा दोस्त है, मेरे साथ को प्रोड्यूसर है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, पार्टनर है, आतिश कपड़िया, जो बहुत अच्छा लिखते हैं। मैं उनका फैन हूँ, तो हमारे ज्यादा काम वो लिखते हैं। तो मैंने लिखना शुरू किया, तो मुझे रियलाइज, हाँ, मैंने बहुत साल पहले छोड़ दिया था लिखना, तो वापस आई एम राइटिंग। सो क्रिएटिवली फॉर मी एंड फॉर एवरी पर्सन आई नो हु लिटिल एक्टिव, जो कुछ करना चाहता है जिंदगी में, जिसमें अभी कुछ स्पार्क है, दिस हैज बीन द बेस्ट टाइम वर्ल्ड ओवर। लोगों ने क्या क्या क्रिएट किया है एक जगह पे बैठ के। वो सिंपल लॉ है, द मिनट यू आर कॉर्नर्ड एट वन प्लेस, योर माइंड स्टार्ट्स ओपनिंग अप एंड यू स्टार्ट थिंकिंग कि मैं यहां से हाउ डू आई रीच द वर्ल्ड। सो क्रिएटिविटी का हमेशा ऐसा ही होता है कि आपको क्रिएटिविटी के लिए बहुत कुछ हर जगह जाना नहीं पड़ता है, आप एक जगह से रह के भी काफी कुछ कर सकते हैं। तो वी आर इन अ सिचुएशन वेयर एवरीबॉडी इज बीइंग क्रिएटिव। वक्त है अपने साथ, अपने आप के साथ रहने का वक्त है। क्रिएटिविटी के लिए वो सबसे ज्यादा महत्व का होता है कि आप अपने साथ रहें। जब आप अपने साथ रहते हो तब आप अपने साथ बात करते करते कुछ क्रिएट कर पाते हो। दैट्स द बेस्ट प्रोसेस टू बिगिन क्रिएटिविटी। सर, आज इस वेबिनार में इस माध्यम से बहुत सारे क्रिएटिव इंडस्ट्री के लोग हैं और जो क्रिएटिव लवर्स है वो जुड़े हैं। तो सर, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि वो जो कविता है वो आज हमें भी सुनने को मिले, प्लीज। हाँ, जरूर सुनने को मिलेगी। मुझे आपको वक्त देना पड़ेगा क्योंकि मैंने सडनली पूछा है आपने, तो मैं कहीं गलतियां नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं पढ़ूंगा, मैं एक मेल पे खोल रहा हूँ वो, और तब तक आप मुझे दूसरा क्वेश्चन पूछे तो मैं आता हूँ। वो कविता मुझे भी अच्छा लगे, मैंने बहुत दिनों से नहीं पढ़ी है कविता, तो मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा। आप तब तक मुझे दूसरा क्वेश्चन पूछें और मैं आपको उसका एक जवाब और दूंगा। बात ये भी है कि अभी क्या है कि ये जो पीरियड है, सबके पास टाइम है, तो सबने क्या शुरू किया है, पुरानी सीरियल्स, पुरानी फिल्में देखना फिर से शुरू किया है। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हो गए जिन्होंने आपकी साराभाई वर्सेस साराभाई और खिचड़ी जैसी सीरियल्स भी देखनी शुरू की होगी, और बहुत रिलैक्सेशन मिलता है माइंड को, क्योंकि सारे दिन कोरोना न्यूज सुन के और पढ़ के ऐसा लगता है कि नहीं यार ये क्या हो रहा है। तो उसमें ये जो लाइट कॉमेडी है, फैमिली एंटरटेनमेंट का ये जो सीरियल है, तो बहुत कुछ हमें रिलैक्स करता है। तो आपको उस टाइम कैसा महसूस होता है? बहुत सारे लोग आपको बताते भी होंगे कि नहीं ये हम पुरानी सीरियल्स वापस देख रहे हैं, तो एज एन आर्टिस्ट आपको क्या फील होता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो किसी का भी कॉमन नॉर्मल जॉब होगा वही मेरा जॉब है। बहुत अच्छा नहीं, लगता है। लेकिन पर फिर भी सब आपको वो सेटिस्फेक्शन भी तो होगा, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन होगा ना कि नहीं हमने कुछ ऐसा क्रिएट किया जो इतने सालों बाद लोगों को इस तरह से हेल्पफुल हो रहा है। मैं आपको कह रहा हूं ना कि एक तो ये खुशी होती है कि जब इस वक्त में ऐसा होता है, ये वक्त ऐसा है कि क्रिएटिविटी का यही कहना चाहता था कि क्रिएटिविटी का एक जो माहौल है ये वक्त में सबसे अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि लोग बड़े डिप्रेस थे और एक्चुअली फियर में थे कि भाई हम इतने दिन कैसे निकाल पाएंगे। ये देखिए अब तो सब इनिशियली जो ये सारा जो कुछ हुआ है तो बिगिनिंग में हुआ है कि 6 अप्रैल से हम लोग सारा भाई ले आए। आज वी आर ऑलमोस्ट ऑन 4 मंथ। सारा भाई खिचड़ी के एपिसोड टेलीकास्ट 6 अप्रैल से शुरू हो गए हैं, तो ऑलमोस्ट 1 महीना। और ये हमारी बातें चल रही थी 22 मार्च को पहला लॉकडाउन अनाउंस हुआ, 22 मार्च से शुरू हुआ था, तो हमने तुरंत एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था कि भाई हम ये लाना चाहते हैं और हमको ये करना चाहिए ताकि लोगों को थोड़ा सा जो है कि डिप्रेशन कम हो जाए, दे स्टार्ट देयर डे ऑन पॉजिटिविटी और खुश रहें, हंसें, दे हैव समथिंग टू प्लान कि हाँ कल उठ के क्या करेंगे। लोगों को पता ही नहीं था क्या होने वाला है। अब थोड़े लोग थोड़े यूज्ड टू है, पर उन दिनों में थोड़ा डर था। तो ऐसे वक्त जब आपकी क्रिएटिविटी आपको लगता है कि हाँ यार एक जगह डॉक्टर सर्विस कर रहे हैं, एक जगह आप देख रहे हैं पुलिस, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, बैंक, और कैसे कैसे लोग हैं जो कंट्री को सर्व कर रहे हैं, और जब आपको ये मौका मिलता है आपको आप कहते हैं ना कि वो साइकोलॉजी, आप एक साइकोलॉजिस्ट या एक इस तरह का डॉक्टर साइकाइट्रिस्ट या तो आप एक मोटिवेशनल स्पीकर है, किस तरह लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं,
वैसा जब मौका मिलता है आपके क्रिएटिविटी से, उसका सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ा होता है। बाकी हमने देखा है कि साराभाई वर्सेस खिचड़ी, साराभाई वर्सेस साराभाई खिचड़ी इतने सालों से लोगों का मनोरंजन करता है, और जब भी लोगों को पसंद किया, लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है, पसंद किया है, सराहा है, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। वी ऑलवेज लव्ड इट, बट दिस टाइम देयर वाज अ स्पेशल फीलिंग दैट या वी कुड कंट्रीब्यूट टू देयर लाइफ व्हेन दे नीडेड अस द मोस्ट। इसमें कोई पैसा मिलना नहीं था, हम प्रोड्यूसर्स को कुछ नहीं करना था हमारे लिए, मेहनत थी वापस लाके, बट द काइंड ऑफ जॉय, सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस इट इज गिवन इज पहले की किसी भी सक्सेसफुल सीरीज, साराभाई जब भी सक्सेसफुल, या खिचड़ी कभी भी कितनी भी लोगों को पसंद आई हो, उससे ज्यादा खुशी हमें इस वक्त हुई है। सो इन अ वे कोई भी क्रिएटिविटी के साथ जुड़े हुए आर्टिस्ट के लिए उसका जो क्रिएटिव पीस है वो कितने लंबे समय तक रहता है लोगों के दिल में, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो इन अ वे ये जो सारा मुझे ये अच्छा लगा, मुकेश सिंह कहीं खिचड़ी देख रहे, खिचड़ी द मूवी, और उनकी स्क्रीन पे भी उन्होंने मुझे एक शॉट खिचड़ी का दिखाया फोन पे, अच्छा लगा। थैंक यू। आप प्लीज आगे बढ़िए। हाँ सर, तो बस वही बात है। और खिचड़ी के साथ बहुत सारी यादें भी आपकी जुड़ी हुई होगी। कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो को तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, जिससे आज इस माध्यम से जो भी आर्ट लवर्स जुड़े हुए हैं उनको पता चले कि नहीं, लाइफ में क्रिएटिविटी की और एक कलाकार की का क्या फीलिंग्स होती है, उनकी क्या वैल्यू होती है, वो भी जानना है। देखिए, आपके क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें, तो पहले एक जो आप लोगों को नहीं मालूम है, एक एक चीज उसके बारे में बताता हूँ, खिचड़ी और साराभाई के बारे में। हम 2004 में हमने साराभाई किया था। आपको पता है उसका गाना जो है, जो बहुत पॉपुलर है, साराभाई बस साराभाई, ये किसने गाया है? उषा उत्तुप जी ने, बराबर है। ये कोई रॉकेट साइंस है, सबको पता। हम उषा उत्तुप जी से कभी आज तक मिले ही नहीं है, और तब भी वो गाना जब उन्होंने रिकॉर्ड किया था, हम तो टेक्नोलॉजी में आज सब कुछ जुड़ रहे हैं ना, हमने 2004 में, वो बेंगलोर थे शायद या कलकत्ता थे, और हमने उनसे बात करी थी कि ऐसा ऐसा गाना है। तो शी सेड के मैं आ तो नहीं पाऊंगी। तो हमने बोला, हम भी वहाँ, वो म्यूजिक डायरेक्टर बोला, यार मैं वहां नहीं जा पाऊंगा, आप ऐसे ऐसे फाइल में घर के पर करके कर दीजिए ना, भेज दीजिए ना। तो 2004 में वो गाना, जब जो हम लोग आज कर रहे हैं सब कुछ डिजिटाइज वर्ल्ड के इतने एक्टिव होके, हमने वो गाना वैसा डिजिटल पे तभी बनाया था, जिसका आज तक किसी को पता नहीं है। आज आप सबको पता चल गया, किसी को पता नहीं चलेगा, इस बात को कहते हैं। तो 2004 में हम वी आर वे अहेड ऑफ टाइम, और हमने वो गाना इस तरह बनाया था। और एक बात खिचड़ी की, खिचड़ी की कैसी कहानी सुनना चाहेंगे आप? बहुत सारी है मेरे पास जो आपको पता नहीं है। कोई एक व्यूअर कह दे कि आऊ कहीं बोलो, तो उस संदर्भ में बोलूं तो अच्छा लगेगा। अगर कोई अपने माइक से बोलना चाहे, या कोई अपने मैसेज में लिखना चाहिए। અમને તો હિમાંશુનો કોઈ પણ ડાયલોગ ગમવાનો જ છે, તમને જે સૌથી વધારે તમારા હૃદયની નજીક હોય એ અમને કહેજો, કારણ કે અહીંયા એટલા બધા વ્યુઅર્સ છે, બધાની ચોઇસીસ, બધાના વ્યુઝ કદાચ અલગ અલગ હોય, સો ઇટ ઇઝ બેસ્ટ કે તમે જ કંઈક અમને સરસ, જે તમને બહુ ગમતી રચના હોય, કંઈક ગમતા ડાયલોગ્સ હોય કે કોઈ એવી યાદગાર મોમેન્ટ હોય એ શેર કરો. આ લોકોને સૌથી વધારે એ ગમે જ્યારે હું છે ને કઈ એવું મૂર્ખા જેવું છે મારું, જે હિમાંશુના કેરેક્ટરમાં છે, જે એવી રીતે બોલે કે પોતે શું બોલે છે એને જ પાછો नेगेटिव કરી નાખે। જેમ કે मैं भी आपको ये सुनाता हूँ कि हिमांशु इतना बेवकूफ है कि वो क्या बोल रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है, खुद बोल के उसी बात को नेगेट करता है। तो कैसे बोलता है, बापू ऐसा वेबिनार हो रहा है, ऐसा वेबिनार हो रहा है कि लगे का वेबिनार हो रहा है। अरे શું मतलब, इसका क्या मतलब है? कि ऐसा ऐसा है कि लगे नहीं कि ऐसा। तो आई लव दैट द मोस्ट, दैट हिमांशु, उसकी एनर्जी इतनी थी, हिमांशु की एक, वो इतना खुशी से सब कुछ बोलता है, तो वो ही लाइटन्स अप द स्क्रिप्ट स्क्रीन एंड वेरी पॉजिटिव मैन, बड़ा अच्छा बंदा है। तो दैट इज व्हाट आई लाइक अबाउट हिमांशु। और वक्त रहेगा तो मैं आपको एक बहुत अच्छी बड़ी स्टोरी है, वो
इसको छोड़ के वक्त रहेगा तो मैं बताऊंगा, क्योंकि लंबी स्टोरी है वो। सो लेट्स टेक अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। સર કોમેડી જે ફોર્મ છે એન્ટરટેનમેન્ટનું એ લોકોને બહુ સહજ ને સરળ હોય છે, એ જોવાથી મજા પડે, પરંતુ એનું જે ક્રિએશન કરવું, કોમેડીને ક્રિએટ કરવી, એ ઇટ્સ અ વેરી ડિફિકલ્ટ થિંગ. તો એ કઈ પ્રોસેસમાંથી તમે પસાર થાવ છો? તમારું તો એમાં માસ્ટરી છે કોમેડી ક્રિએટ કરવામાં, તો એ વખતે શું શું તમને થતું હોય છે, કઈ કઈ લાગણીમાંથી પસાર થાવ છો અને કઈ રીતે બહાર આવે છે? सी बेसिक प्रोसेस की अगर मैं बात करता हूँ तो ये है कि मैं मुझसे ज्यादा अगर कोई ये क्रिएटिव में प्रोसेस में से जाता है तो वो है आतिश, बिकॉज ही क्रिएट्स कैरेक्टर्स, ही राइट्स। देन हमारी जो चर्चा होती है वहां से वी टेक इट फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ क्या ये ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, फिर उसमें किसको कास्ट करते हैं। द होल मेकिंग प्रोसेस देन बिकम्स फर्दर चैलेंजिंग। तो जो पहला हमारा एक मंत्र है कॉमेडी का, वो सिंपल सा है और वो आप सब अग्री करेंगे और आपसे भी रिलेट करेगा। आप कोई भी एक किस्म के जोक, एक किस्म के वीडियोस बार बार देखेंगे तो आपको क्या लगेगा, अरे बस। जोक ऐसी चीज है, ह्यूमर ऐसा है कि एक बार, दो बार, तीन बार, फिर वो सिमिलर जिस पे आप ना जेतल इज ऑल्सो देयर, सो सिमिलर जो आप जो जोक पे ज्यादा हंस नहीं सकते एक एक जोक पे, तो किसी भी तरह का ऐसा क्रिएट करना चाहिए कि जो सिमिलर चीजों पे हंस सके। मेरी बात समझ में आई आपको? एक होता है सिमिलर जोक पे नहीं हंसना चाहते आप, एक होता है उसको इतना ब्रिलियंटली क्रिएट करे आप कि आप बार बार उसको देखना पसंद करें। जैसे कि अभी आपने देखा हिमांशु, तो हिमांशु किस तरह कुछ बोलता रहता है, आपको बार बार मजा आता है। प्रफुल्ल बोलता रहता है मैं हूं ना, तो वो आपको अच्छा लगता है। बाबूजी उसको प्रफुल्ल तू तो गधा है। हमसा बोलती है हेलो हाँ खाना खा के जाते। ये सारी चीजें जो करेक्टर के लोग बार बार बोलते तो आपको अच्छा लगता है ना। दैट इज वेयर वी वर्क द मैडनेस ऑफ द कैरेक्टर्स द, और उसको इस तरह इन्वर्ट करते हैं। इन्वर्ट करना ना यानी जनरली लोग किस तरह समझाऊं, वो एक बड़ी एक ऐसी प्रोसेस है कि बेसिकली आप ना प्रिडिक्टेबल को तोड़ दो सिचुएशन से, तो आप बहुत अच्छा कुछ किरदार क्रिएट कर पाएंगे। और सबसे 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 बड़ी बात है किरदारों को क्रिएट करें। आप अच्छे किरदार क्रिएट करेंगे ना तो वो आपके साथ लाइफ टाइम रहेगी। सारा भाई आपको क्यों पसंद आता है, खिचड़ी क्यों पसंद आता है, बाबूर भी क्यों पसंद आता है, उसके कुछ एपिसोड वीक भी रहेंगे, कोई कोई एपिसोड आपको अच्छे नहीं भी लगे होंगे, आप देखोगे हाँ एपिसोड ठीक है, बुरे नहीं है, कंपेरेटिव आपको लगा होगा हाँ आ सारो છે પણ આ ઠીક છે, पर you do not mind because the characters hold you। वो कैरेक्टर्स में इतनी जान है, अभी वो आप पे। तो उस तरह के कैरेक्टर क्रिएट करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट प्रोसेस व्हिच आर्टिस्ट डज। सर और एक चीज है, अभी पेंडेमिक पीरियड में हर कोई कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन हम जो सीरियस क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो राइटर्स है, पेंटर्स है, सिंगर्स है, वो सब अपनी अपनी टैलेंट सोशल मीडिया के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं और लोगों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रोडक्शन और डायरेक्शन की बात करें तो इन दिनों काफी चैलेंजिंग है, क्योंकि इन हाउस तो आप अपने घर में हैं, तो वो सारी चीजें बहुत चैलेंजिंग है। आपको क्या लगता है प्रोडक्शन और डायरेक्शन के फील्ड में सब ठीक ठाक होने में वक्त लगेगा, और तब तक इस फील्ड से जुड़े लोगों को क्या करना चाहिए? आपकी बात बहुत सही है कि मैंने पहले ही कहा कि इंडिविजुअल एक बंदा एक जगह बैठ के अपना कुछ करना चाहता है तो कर सकता है, बट ये ऐसा माहौल है, ऐसा दौर है दैट स्काई इज द लिमिट। आप सोच सकते हो तो आप पहुंच सकते हो। मैं ये वापस बोलूंगा, अगर आप सोच सकते हो तो आप पहुंच सकते हो। मेरे से भी ये बोलते बोलते ऑलमोस्ट कहावत जैसा हो गया, सोच पहुंच, वाह वाह वाह। तो कमिंग बैक टू सम वेरी प्रोफेशनल थिंग इज दैट आई एम थिंकिंग राइट नाउ एंड आई एम वर्किंग आउट। आपके पहले मेरा एक कॉल था मेरे राइटर्स के साथ, हमारे राइटर्स के साथ, और हमने सोचा है कि हम लोग सब कलाकार को सिखा रहे हैं कि वो अपने घर पे बैठ के अपने वीडियोस कैसे शूट करेंगे। हम एक छोटा एपिसोड बनाने वाले हैं, देखते हो एपिसोड कैसा जाता है। वो प्रोड्यूस भी होगा, वो ऑलमोस्ट डायरेक्टर की नोट भी डायरेक्शन की बन गई है, उसकी कहानी भी बन रही है। और मैंने कहा ना कि चैलेंज
ये चैलेंज लिया है, सोच सकते हो तो पहुंच सकते हो। तो आज ये कल से शुरू हुआ है और देखिए ये अगर सब कुछ सही गया तो इस हफ्ते में आई विल शेयर सम न्यूज विथ यू ऑल। ओके, ये जो डिजिटल एरा में हम आ गए हैं और काफी कुछ बदलाव आएगा, जैसा कि आपने बोला है कि अब सब कुछ चेंज हो जाएगा। वो उसके पहले ना, टू जस्ट इंस्पायर पीपल, आई वांट टू से समथिंग। यस सर, प्लीज। एक सिंपल सी बात आपके मन में होना चाहिए कि आप क्रिएट करना चाहते हैं, और जब मन में आए क्रिएट करना चाहते हैं तो लोग ना एक गलती करते हैं। मैं एक जरा रेस्ट लेता हूँ, आई डोंट नो हाउ माय दिस लुक इज, बिकॉज घर में बैठ के हेड पहन के कितना क्या करने का। आई होप दिस इज ओके एंड फाइन एंड एवरीबॉडी इज नाउ यूज्ड टू माय इट्स दिस। एब्सोल्युटली ओके सर, व्हाट ओके, तो थैंक यू। आपको हाँ सो मैं आ रहा हूँ कि ना लोग ना एक गलती बहुत कर देते हैं क्रिएट करने में, और वही है कि कुछ एक चलता है ना तो कॉपी बनाते हैं, उसके पीछे लगे। वो सक्सेसफुल हो सकता है। There are two different things. Remember, all who are genuinely creative people, remember, there is one thing which can be successful. जो आप ये चलता ना मैं भी ऐसा बनाता हूँ, that is not created. Create means क्या? Completely something original which you have created yourself, और उसका satisfaction ना उस सक्सेस से ऊपर रहता है, because that creativity stays with you. एक सिंपल सा, हमारे सबके नाम क्यों अलग अलग है? हम ये जीडी का नाम अच्छा है, मेरे बच्चे को जीडी बोलूंगी, ऐसा तो कोई लीडी करेगी नहीं ना। अमिताभ बच्चन, पूरा नाम पढ़ू अमिताभ बच्चन को, अमिताभ है बच्चन सरने में, पर अमिताभ बच्चन बड़ा सक्सेसफुल नाम है, तो कोई अपने बच्चे का नाम अमिताभ बच्चन तो नहीं रखेगा ना। आज से मैं मेरे बेटे को अमिताभ बच्चन बोलूंगी। सो सवाल ये है दैट हम सब इंडिविजुअली यूनिक, जो गॉड का क्रिएशन है, तो हमको ये समझना है कि जब भी मैं कुछ क्रिएट करूं वो यूनिक होना चाहिए मेरी तरह। द वे मैं इस दुनिया में एक सिंगल पीस हूं, उसी तरह मेरा काम भी सिंगल पीस होना चाहिए। जब आप ये समझ लोगे, ये समझ के वहां तक पहुंचने की कोशिश करोगे, इन अ वे वेरी सिंपल है ये जर्नी। आप जिस दिन वो क्रिएट कर पाओगे, आपको पता है बहुत सारे आइडियाज ऐसे होते हैं जो जीनियस क्रिएट करता है, वो जीनियस आइडिया होते हैं एंड देन दे क्रिएट फॉर्च्यून आउट ऑफ इट। So always aim to create a fortune out of something, और फॉर्च्यून के क्रिएशन के लिए आप किसी की कॉपी मारोगे तो नहीं होगा ना। सो ट्राई एंड बी वेरी क्रिएटिव इंडिपेंडेंटली, बी यूनिक, एंड that will lead you to, if not fortune, that will lead you to a satisfaction। and वहां पे आईपी आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। खुद की प्रॉपर्टी क्रिएट करो। जब तक दूसरे की प्रॉपर्टी में रहोगे भाड़े पे ही रहोगे, तो खुद की क्रिएटिविटी से क्रिएट करो। ईश्वर ने सबको बहुत कैपेसिटी दी है। आई एम डन। आगे। So now it's time to save our property and documentation बहुत जरूरी है। चाहे किसी भी फॉर्मेट का आर्ट पीस हो, लेकिन उसका सही समय पे सही ढंग से डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। अदरवाइज आपने जैसा बोला कि कॉपी भी हो सकता है। तो अब ये सारी छोटी छोटी बातें जो हमने पहले नहीं सोची थी, लेकिन अब वो सोचनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो है एक एरा ही चेंज हो गया है। तो सारी चीजें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, तो कॉपी होने का चांसेस भी ज्यादा है। तो उस दौरान जो नए लोग हैं जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनको आप क्या एडवाइस देंगे, किस तरह से उनको अपने वर्क का डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, क्या सोच के करना चाहिए? देखिए आजकल मैं एक बात सबको एडवाइस देता हूँ अच्छी, कि हम जिस फील्ड में माहिर हैं, वैसे ही कुछ लोग अपने फील्ड में माहिर हैं। जिंदगी में अगर आप कुछ बिजनेस करना चाहते, कुछ काम करना चाहते, प्रोफेशनली करना चाहते, then you should always have one good chartered accountant and one good lawyer with you. ये दो are like good family doctor। हमको वो बात कैसे आसानी में समझ आती है कि हमारा डॉक्टर बहुत सारा है। हम कहीं भी जाते हो तो एक अच्छा डॉक्टर पसंद करते हैं ना हमारी जिंदगी में, हमारे लाइफ के लिए, टू प्रोटेक्ट आवर हेल्थ, टू प्रोटेक्ट योर बिजनेस, यू शुड हैव अ गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ गुड लॉयर। नाउ सेइंग सो, why you need to always protect your copyright is, ये किसी और को भी सूझ सकता है। जो आपको सूझा है वो आइडिया किसी और को भी सूझ सकता है, और कल
मोर देन प्रोटेक्शन, वो आप पे क्लेम ना कर दे कि भाई आपने मेरा आइडिया चुराया है, दैट विल बी मोर डिसहार्टनिंग, यू नो। वो आपको ज्यादा, अरे यार नहीं नहीं मेरा खुद का है, कितना केस लड़ोगे। सबसे पहले अपना प्रोटेक्शन करने के लिए ये करना जरूरी। दूसरा, अब उल्टी बाजू से सोचो, तो आपने अगर किया है और कोई कल को उठ के कॉपी कर लेगा तो आपको कितना बुरा लगेगा। अगर सक्सेसफुल गया आइडिया तो आपको कितना बुरा लगेगा। देन यू शुड बी एबल टू। तो ये दूसरा पॉइंट है। अब तीसरा सबसे बड़ा जो हमने सफर किया है थोड़ा सा, मैं उसके बारे में बहुत सिंपल वर्ड्स में बताऊं कि उन दिनों इतनी फैसिलिटी नहीं थी, समझ नहीं थी, बिकॉज फर्स्ट जनरेशन से थे हम लोग टीवी में, तो हमको कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह के बारे में समझ नहीं आते थे, हम तो साइन ऐसे ही कर देते थे, पढ़ते भी नहीं था पूरा। हम बोलते अरे हाँ भरोसे पे चलता था। एक जमाना था पूरी दुनिया भरोसे पे चलती थी। आपको पता है हमारे बाप दादा के टाइम पे क्या होता था कि जबानी बातें होती थी, धंधे बिजनेस जबानी होता था कि कल इतना आपको माल भेजता हूँ और ये पैसे आप उनको दे देना, ओके डन डन हो गया। पैसे लेने हैं आपसे उतने, वो 3 महीने 2 महीने भरोसा कर सकते थे। बट टाइम्स हैव चेंज, एवरीथिंग इज बीन रिप्लेस्ड बाय पेपर। सो सी टू इट दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली पेपर। आजकल इतना इनोवेशन होता है कि कल क्या आएगा वो आपको पता नहीं है। सो कल भविष्य को भी प्रोटेक्ट करते हुए, इसमें इनकॉर्पोरेट करते हुए एक डॉक्यूमेंट बनना बहुत जरूरी है, ताकि कल को उठ के किसी भी दो पार्टी को जाने दो, उनकी जनरेशन में कभी भी मतभेद हो तो पेपर विल सर्व एज कि भाई ये है, इसको फॉलो करें। देयर हैज टू बी समथिंग इन केस ऑफ डिस्प्यूट टू फॉलो। तो आईपी है, वो एक पेपर है, और उसमें अगर आपने सब कुछ मेंशन किया है कि आपका क्या है तो वो डॉक्यूमेंट का। और नाउ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ वेरी वेरी ट्रिकी सब्जेक्ट एंड वेरी वास्ट। उस पर इतना डिटेल में बोलना ये सेशन में शायद उचित नहीं रहेगा, बहुत उसी पे चला जाएगा वक्त, और मेरे से ज्यादा जानकार लोग इधर, तो आई लीव इट टू देम। पर मैं इतना ही कहूंगा कि जो कुछ अपने आइडिया है उनको, जैसे अगर मैं राइटर के हर क्रिएटिव प्रोफेशनल फील्ड का एक एसोसिएशन होता है, जैसे हमारा है राइटर्स का, तो हम जैसे लिखते हैं, हम पहले राइटर्स एसोसिएशन में रजिस्टर, हम वहाँ मेंबर बनते हैं, वहाँ रजिस्टर कर देते हैं हमारा कॉन्सेप्ट कि भाई ये कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है, ये है। अब मेरे बाद वाला कोई लेके आता है और हमारे में डिस्प्यूट होता है तो दे नो माई कॉन्ट्रैक्ट इज देयर। और रही बात आईपी की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की डिटेल में, तो ये कभी और सम अदर टाइम। तो अब हम एक और तरह की बात करेंगे कि एज एन आर्टिस्ट हमने आपके बहुत सारे शोज देखे हैं। गुजराती नाटको ની પણ એક અલગ મજા હતી, એની એક અલગ યાદો હતી। તમને પર્સનલી સૌથી વધારે શું કરવામાં વધારે મજા આવી છે? એઝ એન એક્ટર મને સૌથી વધારે મજા આવી છે થિયેટરમાં, અને બીકોઝ એમાં શું હોય ને, एक्टर ने है ना ये बहुत ग्रेटिफाइंग, फॉर एक्टर्स इट इज वेरी ग्रेटिफाइंग कि आप जब परफॉर्म करते हैं और इमीडिएट रिएक्शन आता है, आप कुछ कर रहे हैं इमोशनली और इमीडिएटली यू फील इट, यू आर फीलिंग, एंड द प्रोसेस इज लॉन्गर। आपको मालूम है वहां पे कट नहीं है, दूसरा टेक नहीं है, यू रिहर्स वेरी वेल, एंड आज आप पूरी प्रोसेस ऑफ इमोशन, टीवी और फिल्म में क्या होता है, टेक्निकल माध्यम, हमने एक शॉट यहाँ से लिया, उतना सीन किया, वो सीन में मजा आता है, पर पूरा एपिसोड तो साथ में होता नहीं है, पूरी फिल्म तो 2 घंटे के साथ में होती नहीं है। पर थिएटर में तो पूरी क्या होता है ना, वो कैरेक्टर की जो जर्नी होती है ना, जो आप खुद महसूस करते हैं, शुरू से लेके एंड तक की जर्नी जो आप फील कर सकते हैं, कैरेक्टर का ग्रोथ, आपके अंदर से जो इमोशन महसूस कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ थिएटर में होता है। क्योंकि वो बिगिनिंग के पहले सीन से अगर एंड में मैं पूरी एक जर्नी में से जाता हूं, तो मैं वहीं पे उसको महसूस करता हूं, रिलेट करता हूं, और उसका रिस्पॉन्स मुझे वहीं आ जाता है। और रही बात टीवी की, तो बहुत अलग अलग तरीके से कट होता है, मजा उसमें भी आता है, टुकड़ों टुकड़ों में आता है। और फिल्म की तो जब आप सब कुछ हो जाता है, फिर डबिंग में जाते हो, तो मैं आई एम वेरी बैड एट डबिंग, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे मजा ही नहीं आता डबिंग में। क्यों? मुझे आटलू सारू तो कई रुचि मैं तो बिगाड़ता हूँ मेरे से बिगड़ जाता है मेरा। फिल्मों में मैंने हमेशा देखा है कि मेरे से काम बिगड़, ऐसा मुझे लगता है। और फिर जब उसको बहुत मेहनत कर करके करता हूँ, एक साथ देखता हूँ, तो कहा यार ये टेक्निक कितनी, कुछ एक्टर्स थे और कुछ एक्टर्स हैं
जिनको ये टेक्निक इतनी उनकी पकड़ आ जाती है कि वो सीन शूटिंग में कुछ भी कर लेते ना, उनको चलता, उनको मालूम है डबिंग है ना, वो डबिंग में उसको 4 चांद लगा देते हैं। मैंने सुना था संजीव कुमार जी के बारे में कि वो डबिंग में 4 चांद लगा देते हैं, और ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं। तो यहाँ तो फिलहाल आज मेरी बात है तो हम करते हैं कि मैं डबिंग में थोड़ा सा सो आई एंजॉय थिएटर। अच्छा, मैं हर चीज का जवाब थोड़ा विस्तृत इसलिए दे रहा हूँ ताकि मैं कुछ और 2 चीज बोल पाऊं। आपको ऐसा लगे जेडी भाई जरा लांबू बोलो छो, तो प्लीज वन मैसेज फ्रॉम एनीबडी एंड आई विल कीप इट शॉर्टर so that I can take more questions. ને અહીંયા જેટલા પણ લોકો છે એ બધાને એમ જ છે કે જેડી ભાઈ જેટલું વધારે બોલે એટલું સારું, કારણ કે અમે બધા સમય કાઢીને તમને સાંભળવા માટે, લોકો મને નથી સાંભળતા, હું ખાલી ક્વેશ્ચન્સ પૂછી લઈશ, બાકી લોકોને Okay. તમારા એક્સપિરિયન્સ અને તમારા જ વ્યૂઝ વધારે સાંભળવા છે. અને એક Hi કલાકાર रोहित पोटे कोई हाथ दिखा रहा है मुझे। रोहित, अरे रोहित you called, कंटिन्यू। या तो जब कोई सेलिब्रिटी होता है तो उनका एंटरटेनमेंट के अलावा और भी बहुत सारी जिम्मेदारी अपने आप होती है, जैसे कि आपके बहुत सारे फैंस एंड फॉलोअर्स होते हैं। और मैंने देखा है कि जब ये लॉकडाउन पीरियड शुरू हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक रिक्वेस्ट था कि इस दौरान हम सब एक दूसरे से मदद करें, तो वो जो मैसेज है वो आपने भी अपने ट्विटर पे शेयर किया और बहुत सारे आपके फैंस ने उसको फॉलो किया है, रीट्वीट किया है और वो सही मायने में करके दिखाया है। और प्रधानमंत्री जी ने भी आपके नाम के साथ अपने ट्वीट में मेंशन किया था। तो एक इंसानियत के नाते भी एक कलाकार की जिम्मेदारी ऐसे माहौल में, ऐसे पीरियड में बढ़ जाती है। तो बहुत अच्छा लगा कि आप ये कर रहे हैं। तो आपको पर्सनली उसमें क्या फीलिंग आई और क्या इमोशंस? ऐसा है कि भी celebrity I believe are celebrated. Why are we celebrity called celebrity? We are celebrated. एक सेलिब्रिटी आ जाता ना तो 25-50 लोग कहीं भी होंगे ना भाग के उसके पास जाते हैं। ये प्यार, ये रिस्पेक्ट, ये चाहना सभी को नहीं मिलती है, तो आपकी जिम्मेदारी भी होती है। क्यों? यू आर अ मोटिवेटर, you are an inspire, you can inspire people, inspire, and you are an influencer. आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों की सोच को। हमारे काम के जरिए हम अगर 4-5 फिल्में ऐसी कुछ बनाए, एक विषय को लेकर, तो लोग उसमें मानने लगेंगे कि दुनिया ऐसी ही है। फिल्म जगत जो है, टीवी जगत जो है, कोई भी क्रिएटिव माध्यम जो है, वो पेंटर अगर वो ऐसी एक प्रकार के पेंटिंग बनाते रहेंगे और उसमें से कुछ इमोशंस ऐसे इंटेलिजेंटली उसको प्रेजेंट करेंगे, तो एक कम्युनिकेशन का जरिया ऐसा है कि लोग उनको मानने लगेंगे। तो हम सब जो सेलिब्रिटी है उनकी बहुत जिम्मेदारी बनती है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं कि मेरे को बीच में एक शो मिला था टीवी पर, फिर वो प्रधानमंत्री जी वाली बात पे बाद में आता हूं। मैं क्यों कहना चाहता हूं, उस शो में उन्होंने हमको एक शो दिया था और कहा था ये बहुत अच्छा शो और थोड़ी अडल्ट कॉमेडी है वो, तो बोला आप करिए ना। तो हमने बोला हाँ, हमको एडल्ट कॉमेडी करने का कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो मानते हैं इंडिया में रिस्ट्रिक्शन है बहुत, तो करना चाहिए, तो टीवी पे नहीं करना चाहिए। अडल्ट ह्यूमर की एक जगह, और अगर करते भी हैं तो उसको आप है ना लेट नाइट शो एंड कॉल इट अडल्ट कॉमेडी, और उसको आप 10 बजे के बाद दिखाइए। अडल्ट यानी नॉट वल्गर, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट वल्गर, नॉट दैट। पर उसमें था कि भाई एक आइंग समवन्स वाइफ वाज द आइडिया। तो हमने बोला कि क्या ना ये फॉर अस दे कन्विंस अस अ लॉट, करो ना, बहुत अच्छा शो है प्लीज, ये वो बहुत बात हुई। तो हमने कहा कि नो इट इज नॉट फेयर, क्योंकि अगर आप इसको दिन भर में भी, दोपहर में या अगर सुबह में रिपीट टेलीकास्ट दिखाते तो बच्चे भी देखते हैं। और इट इज लाइक टीचिंग अ किड दैट इट इज फाइन टू आई समवन एल्सेस वाइफ। तो आई वाज अगेंस्ट इट बिकॉज वी न्यू दैट हम यार कुछ सिग्नल ऐसे दे देंगे तो इट बिकम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ क्रिएटिव पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एन एक्सटेंट दैट वी हैव टू बी, वी कैन इन्फ्लुएंस पीपल। तो उसी सोच को यहाँ कनेक्ट करते मैं कहना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री जी ने ये जब लॉकडाउन के बारे में बताया, और हमको सबको पता है कि पूरे विश्व में कोई भी ऐसा एक लीडर, ऐसा कोई है नहीं जो फिलहाल ये महामारी को अकेले लड़ पाएगा। किसी भी देश का लीडर, हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत अच्छी तरह संभाला, हमारे सारे सीएम ने बहुत अच्छी तरह संभाल रखा है अभी हमारे देश को फिलहाल। तो तब जब उन्होंने कहा था तो मुझे लगा कि हाँ यार हमको भी तो कुछ करना पड़ेगा, तो वी ऑल स्टार्टेड
few things on our own, started supporting people, कुछ मदद ये वो। और एक दिन मैंने एक वीडियो देखा था, वो वीडियो देख के ना मैं रो पड़ा कि यार, गुजरात से कहीं द्वारका से थोड़े दूर से एक वीडियो था, मैं बार बार उसका जिक्र करता हूँ कि वो बंदे ने बोला था कि काफी 3-3.5 मिनट का वीडियो था, पर उसकी एक लाइन जो वो बोलते बोलते जब वो लाइन पे आया कि 3-4 दिन से खाना नहीं खाया है, कोई बात नहीं है, मैं तो सह लूंगा, पर मेरी बच्चे मेरी गोद में मर जाएंगे। मैं आज भी बोलता हूँ तो डिस्टर्ब हो जाता हूँ। वो देख के मुझे लगा कि यार, मैं सिर्फ इन कामों के लिए नहीं बना हूं यार, मेरा काम करता हूँ, इंडस्ट्री का थोड़ा काम करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ऐसा करता हूँ। आई एम कट आउट फॉर समथिंग मच बियॉन्ड ऑल दिस, मच बिगर देन दिस, एंड आई मस्ट स्टैंड अप, राइज अप टू द ओकेजन एंड हेल्प द कंट्री। तो क्या कर सकता हूँ? सोचने लगा, तो मुझे एक आइडिया, बहुत बहुत टाइम गया उसमें। मैंने कहा क्रिएटिवली जब आप बैठते हो तो आपको यूनिक आइडिया सोचना पड़ता है कि मैं किस तरह करूं। अक्षय कुमार 25 करोड़ रुपया एक साथ दे सकते हैं, मुकेश अंबानी 500 करोड़ दे सकते हैं, तो मेरे पास पैसा नहीं है, पर मेरा इंटेंट में कमी नहीं होनी चाहिए, मेरी जो नियत है उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। पैसा या बहुत बड़ी बात है, उन्होंने दिया है, हैट्स ऑफ टू देम, पर मैं कुछ तो कर सकता हूँ। तो मैं क्रिएटिव बंदा हूँ, तो मैं आइडिया से कुछ तो सोच सकता हूँ बड़ा, वेर आई कैन स्टैंड बाय द कंट्री। ऐसा सोचते 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 मैंने सोचा, हाँ, एक आइडिया मैंने शुरू किया। वो आइडिया था फैन का फैन इंडिया। देखिए, घर घर में टीवी है, आज हिंदुस्तान में जहां जहां टीवी है, वो घर में एक प्रोग्राम तो किसी का फेवरेट होगा, किसी का खिचड़ी होगा, किसी का रामायण होगा, किसी का भाभी जी होगा, किसी का कुंडली भाग्य होगा, किसी का तारक मेहता होगा। कोई ना कोई शो तो एक घर में पसंदीदा होगा, उसमें एक कोई तो कैरेक्टर होगा जो लोगों को घर में पसंद करता है। अगर मैं वो 500 एक्टर है, अलग अलग शोज के अलग अलग लोगों को एक अम्ब्रेला के नीचे लेकर आता हूं, दैट मीन्स वो सारे हाउस होल्ड्स दूसरी अम्ब्रेला के नीचे आ गए। नाउ दिस 500 एक्टर्स अगर इनको कुछ कम्युनिकेट करते हैं तो सीधा मैसेज उनको मिलता है। तो इस तरह का पहले मैंने एक अम्ब्रेला बनाया कि हर घर पर पहुंचने के लिए टीवी एक्टर्स इकट्ठा बहुत स्ट्रॉन्ग पावर होता है, इंडिविजुअली नहीं होगा, पर टीवी वाले अगर इकट्ठा हो जाए तो दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर इन द कंट्री, बिकॉज दे रीच एवरी हाउस होल्ड, जो सब नहीं पहुंच पाते। तो मैंने लगा ये बड़ा पावर है, इसको इकट्ठा करके करते हैं। और सारे जो फैंस है, अगर वो जुड़ जाए हमारे साथ, जैसे मैं आप सभी को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि fan-ka-fan.com विजिट जरूर कीजिएगा। इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया टू हेल्प पीपल। करना क्या है आपको कि भाई, एक सेलिब्रिटी बोलता है कि अगर आप पीएम केयर्स फंड में fan-ka-fan.com के जरिए डोनेट करते हैं, एक किसी जरूरतमंद परिवार की मदद करते हैं, तो आपको मिलेगा आपके चहीते सेलिब्रिटी की ओर से थैंक यू वीडियो, जिसमें आपकी तस्वीर रहेगी, नीचे स्क्रॉल पे आपका नाम आएगा, और उतना ही नहीं, आपने वो लिस्ट में से fan-ka-fan.com पे जितने सेलिब्रिटीज है, उसमें से जिनको पसंद किया है, वो क्या बोलता है, वो सेलिब्रिटी ये बोलता है कि आप इतना आज से आपका फैन हो गया, समझे? सेलिब्रिटी एक फैन का फैन हो गया। दिस इज द कॉन्सेप्ट। वो वीडियो आप ले जाए, आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करें, तो आप कितने लोगों को ये दिखा सकते हैं कि आप जिनके फैन है वो आपके साथ है, उसने आपको वीडियो भेजा, आपने एक अच्छा सोशल काम किया, और आप सोचिए जिस परिवार को आपकी ओर से मदद मिली होगी, वो कितनी दुआएं देगा। आज 3-4 हजार रुपए में एक महीना किसी का घर चल जाएगा। राशन और सब गवर्नमेंट गेहूं चावल सब बहुत सस्ते में दे रही है। तो ये एक आइडिया मैंने बनाया ताकि जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उस तक, अगर उन लोगों तक अगर हम टीवी के कलाकार पहुंच पाते हैं और हमारे फैन को भी खुश करते हैं, तो हम और फैन जब ऐसे मिल जाएंगे तो हम पूरे देश के कोने कोने तक पहुंच पाएंगे। तो दिस वाज द आइडिया विच आई क्रिएटेड ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। दैट्स, अभी तो मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ कि उसमें फैन को एक और अपॉर्चुनिटी है कि उसकी तस्वीर जाती है वॉल ऑफ फैंस में, यानी हमारे जो फैंस हैं उसकी वॉल हमने बनाई है, वॉल ऑफ फैंस, उसमें सेलिब्रिटीज के साथ उसकी पिक्चर जाती है। तो मुझे लगा कि देश के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े रहने का एक बहुत अच्छा आइडिया था। जब ये मैंने ट्वीट किया तो मुझे कुछ, वो ट्वीट में से उन्होंने देखा कि बड़ा ब्रिलियंट आइडिया है, दिस इज अ ब्रिलियंट वे टू रीच आउट टू पीपल ऑल ओवर द कंट्री,
तो दैट इज व्हाई ही रीट्वीटेड माय ट्वीट। ये मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने मेरे ट्वीट को पढ़कर रीट्वीट किया, बिकॉज द आइडिया इज वेरी नोबल एंड इट्स अ, टू मी इट्स अ वेरी गुड आइडिया। तो ये क्रिएटिविटी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। इसके पीछे एक बात थी कि मेरी इंटेंट, मुझे कुछ करना था, कुछ बड़ा, कुछ अच्छा, और उसके लिए पैसे की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ जो ये पूरी कंपनी क्रिएट करी मैंने, उसका जो पैसा लगा वो मेरी ओर से चैरिटी है। पर बाकी आप समझिए, पैसा बहुत छोटी बात होती है। पहले एक आइडिया ब्रिलियंट होना चाहिए। मनी विल ऑलवेज चेज, ऑलवेज फॉलो अ बिग आइडिया। तो आप भी अपना इंटेंट मजबूत रखिए, क्रिएट करिए, मनी विल फॉलो। इसी के साथ fancafan.com विजिट जरूर करना एंड सी आपको कैसा लगता है। Sure. सॉरी, मैं थोड़े टाइम के लिए डिस्कनेक्ट हो गई थी, शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, so I missed some point. If we have any questions from our viewers, so you can raise your hand, please. और मुझे तो यहाँ से दिखेगा नहीं, मुझे ऐसे समझना पड़ेगा, आपको मुझे बोलना पड़ेगा किसका क्वेश्चन है। और फिर वरना मैं आपको वो कविता मैंने रखी है खोलकर, वो आपको किसी का क्वेश्चन है, एक आशा तो पहले कविता लेते हैं। कविता सुनिए पहले। यस सर। ठीक है। तो ये कलाकार की भावना है अपने फैंस के प्रति, जो मैंने पिछले महीने लिखी थी। ये जब लॉकडाउन शुरू होते होते 10, 12, 15 दिन हो गए थे, तब की है। कलाकार कहते हैं, हम लाए हैं हमारे दर्शकों के लिए दुआएं और ढेर सारा प्यार, क्योंकि हम कलाकारों के लिए तो पूरा देश है हमारा परिवार। सुबह हो शाम हो सोम या हो रविवार, भावनाओं में बहाते हैं, उम्मीदों को जगाते हैं, रोते को हंसाते हैं, ऐसे है हमारे किरदार, पूरा देश है हमारा परिवार। नहीं ला पा रहे हैं नई नई कहानियां, नए चुटकुले, ना ही नए नाच गाने शानदार, हमें भी रहना है घर पर आप ही की तरह बन के समझदार, साबुन से हाथ धोने बार बार, सबको दूर से ही करना है नमस्कार। कभी सब्जी घटेगी, घटेगा दूध, तो कभी घटेगा आटा और ज्वार, बाहर लेने ना जा सको, ऐसा भी होगा कभी कभार। अपने और अपनों की सेहत ठीक है, अपने और अपनों की सेहत ठीक है, तो बढ़िया लगेगा सिर्फ सूखा चावल और साथ में थोड़ा सा अचार। क्या बात है। कभी लड़ाइयां भी होंगी, झगड़े भी होंगे, और हो सकती है घर में तकरार। कभी लड़ाइयां भी होगी, झगड़े भी होंगे, और हो सकती है घर में तकरार। ना घर में रह पाओगे, ना रूठ कर बाहर जा पाओगे। हमसे जुड़े रहना, हम मदद करेंगे मिटाने में हर दरार, क्योंकि पूरा देश है हमारा परिवार। सपने सभी के हैं, जिम्मेदारी है सभी पर। सपने सभी के हैं, जिम्मेदारी है सभी पर। चिंता सभी को है, कब काम शुरू होगा, कब जा पाएंगे बाहर। स्कूल, कॉलेज, मॉल्स और थिएटर, पूरी दुनिया खुल जाएगी। 5 स्टार्स होटल से लेकर चाय की टपरी फिर से जिंदा हो जाएगी। आमदनी भी आएगी, पैसा भी मिल जाएगा, बहुत बढ़ेगा व्यापार। फिलहाल सिर्फ करने अच्छे विचार और सही वक्त का इंतजार। अपना तो हम कर लेंगे। माय मोस्ट फेवरेट लाइंस, जहां से ये कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ था, वो ये है। फैन का फैन इंडिया यहां से जन्म हुआ था। अपना तो हम कर लेंगे, आज तक किया है, आगे भी करते रहेंगे। मौका मिलने पर किसी और के भी बनना मददगार। मौका मिलने पर किसी और के भी बनना मददगार, यही आपका परिचय होगा अपने आप से। यही आपका परिचय होगा अपने आप से। इसी से निकलेगा सभी का सच्चा किरदार।
जिसने नींव हिलाई है, जिसने नींव हिलाई है वही बनेगा आधार। ऊपर वाले पर भरोसा रखे वही करेगा बेड़ा पार। हम आपसे हैं, आप हमसे हैं, हम आपसे हैं, आप हमसे हैं, हम सब हैं देश का सबसे बड़ा परिवार। हम भी मिस करते हैं आप सभी को, क्या करें हम भी हैं लाचार। आओ मिलकर एक हो जाएं और वही करें जो कहती है सरकार। हम हमारे फैंस से बहुत करते हैं प्यार, क्योंकि हम कलाकारों के लिए तो पूरा देश है हमारा परिवार। थैंक यू। ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ સર. बहुत ખરેખર બહુ ઇન્સ્પિરેશન આપે એવી કવિતા છે, અને કદાચ આ જે ફિલિંગ છે દરેક ભારતવાસીની આ ફિલિંગ્સ છે. શબ્દોમાં બધાને કદાચ આવી રીતે વ્યક્ત કરતા ના આવડે. ઘણા બધા લોકોએ વાહ કહ્યું છે, બધાએ બહુ એપ્રિશિએટ કરી છે. અને હું અહીંયા જોઈ રહી છું कमेंट्स. कुछ लोग कह रहे हैं कि सर अगर आप हमें करते हैं सच्चा प्यार तो एक बार तो बोल दीजिए खिचड़ी का डायलॉग. ऐसी कमेंट्स और हमें व्यूअर्स से मिलती है. और भी मैं लास्ट में आपके सारे सवालों के बाद आपको बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं किसी का कमेंट देख नहीं पा रहा हूँ, ना किसी को देख पा रहा हूँ, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं आखिर में जरूर ये एक डायलॉग बोल के जाऊंगा, अच्छा सा बोल के जाऊंगा, आप सबको अच्छे लगे वैसे उस तरह बोल के जाऊंगा. સો અત્યારે જો તમને કોઈ ક્વેશ્ચન્સ હોય તો પ્લીઝ મજેઠિયા સરને તમે ડિરેક્ટલી પણ પૂછી શકો છો, એઝ યુ ઓલ આર ઓનલાइन. आपके हिसाब से कितने लोग जुड़े आज हमारे साथ? अंजुला जी. यस मैम, थैंक यू सो मच मजेठिया सर. ये कितने लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, मैंने ये पूछा आज. करीबन 50 पीपल सर, 50 लोग जुड़े हुए हैं. वाह वाह वाह. एंड पीपल फ्रॉम इंडस्ट्री, पीपल फ्रॉम the groups, friends, everybody has joined in. Okay. So thank you so much. It was great hearing you, and now I will open this session for the questions. Yeah. One second. If anybody has questions, please raise your hand. I'll be able to take your questions and unmute you. Gopi ma'am, did I see your hand? I can see. All right, I see Sanjay Derasari ji. Sanjay Derasari is raising his hand. Yeah, Sanjay ji, please go ahead. And I can say Jwalin Jolly also. જેની સર ગુજરાતીમાં પૂછું છું, દરિયાના છોર ઉપર તમને સ્ટેજમાં જોયા. હા હા. પછી તરસી આવીએ તમારો અવાજ નથી આવતો. અરે રાજીવ जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है. હા, તમને સ્ટેજ ઉપર દરિયાના છોરુમાં બહુ જ અમે ગમ્યું હતું, પણ હવે અમે સ્ટેજ ઉપર તમને ક્યારે જોઈ શકશું? See, I would myself, મને પોતાને બહુ જલ્દી આવું છે સ્ટેજ પર, પણ હવે આ એવું છે ને કે તમારી તકદીર હોય ને, ઈશ્વર તમારા પર મહેરબાન થાય ને ત્યારે જ તમે આવી. તો હું મહેનત બહુ કરું છું કે હું એક પ્લે બનાવું અને પાછો જલ્દીથી સ્ટેજ પર આવું, પણ મારી તકદીર હશે ત્યારે આઈ થિંક આઈ વિલ બી એબલ ટુ કમ બેક. બાકી એક બે ઓપોર્ચ્યુનિટી આવી અને આઈ કુડ નોટ ડુ ઇટ. ઠાકોરભાઈ દેસાઈવાલ તમારી રાહ જોવે છે. આઈ નો ભાઈદાસ ને તેજપાલ ને અહીંયા ઘણા ઓડિટોરિયમ છે જે મારી હું રાહ જોઈ રહ્યો છું. ઠાકોરભાઈ શું, હું પોતે રાહ જોઈ રહ્યો છું. સો આઈ વિશ કે મને એવી ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે અને આઈ કેન થેન્ક યુ. Alright. Thank you, sir. Any more people wanting to? Anjula, in the list, if you see, there are people who has raised the hand. I think. Yeah, Sappan, there are 5 people I can see. Yes. Sappan, Harshvasi, Vaibhavi, Purvi Joshi. So you can take one after the other. Sure. First, I'll take Jwalin Jolly, whom I can see. So I'm unmuting him, and then we'll take the others. Jwalin, please go ahead. Yeah, hi. JD sir, કેમ છો? मैं मजामा हूँ सर. वाह, एकदम मजामा. હું દુબઈથી વાત કરું છું. ઓહો, આને કહેવાય વિધાઉટ વિઝા પાસપોર્ટ બધે વિધાઉટ ટ્રાવેલિંગ જો આપણું. એકચ્યુઅલી ની અંદર હું બધું ફોલો કરું છું. આમ ફ્રોમ ગુજરાત, બરોડાથી છું અને ડાટા ચલાવું અને તમારું આ બધું જોતો રહું છું, વિડિયોઝ અને બધી વસ્તુ.
I'm especially from I'm from Parekh family. Serial થોડી વધારે મને ઇન્ફ્લુઅન્સ કરી છે. કઈ ખીચડી ખીચડી ઓકે તેના ડાયલોગ્સ ને બધું તો આમ વેરી ગાઈસ કે તમે અને હમણાં તમે વી હેવ શોટ દુબઈ ના એપિસોડ ચાલતા હશે તો બહુ મજા આવતી હશે. આઈ મીન દે હેવ લોસ્ટ ટ્રેક. જોઈએ છે એ બધું વધારે થાય આ વખતે તમારી જોડે થઈ અને વાત કરીએ. And thank you you guys. Please go to thank you કે તમે લોકોના જરીએ અમને જાણવા મળે, નવી વસ્તુઓ શીખવા મળે છે અમને. યા યાર pleasure. My pleasure. Nice talking to you. Same here. Thank you. Yeah. Sir, we have next someone Sapan. Sapan, I can see. Sapan, can you you are already I can see Sapan. Yeah, I can see Sapan. Hi. Sorry, just to interrupt. Prapti ma'am. Yes. Prapti ma'am, will you please take Sagar. the session ahead? So please go ahead and take the session and take the question. Hello. How are you, Sagar? મારો નેવી છે દુબઈ થી. All good, Sagar? આ તમારું દુબઈમાં બહુ લોકોએ કનેક્ટ કર્યું છે. Good to see you, yaar. I never expected you on this platform. Prapti, can you take up the questions after this, Sapan? Yeah. Sapan, go ahead, question. I'm not having questions on my screen. I have the names, so don't worry. Sapan, you are already unmute. Can you speak? Yeah. Hi. Hello, JD. Kem show. I'm fine, Sapan. How are you? Fine, sir. I'm too. Sir, એટલે એવી રીતે શરૂ કરું કે હું easily બડા છું and Sapan, I can't hear your question. hello. Sapan, there is some issue with your internet connection. I can't hear you. Your question is, I complete muffled sound. So can we take the next one till the time Sapan Why comes not? into the network? Till We then, have I'll take. Vaibhavi. I'll speak. Okay. Sagar, બધું બરાબર છે ને? તમે બધા બરાબર છો ને ત્યાં? some Vaibhavi is there. Yeah, please, Vaibhavi, go ahead. Hello, sir. I can't see. હમણાં હતા તમે લોકો. હમણાં જ વૈભવીને મેં જોઈ હતી, I think. Yeah, Vaibhavi, go ahead. I'm searching for you. Hi, sir. So my question is like કે કોઈ પણ સિરિયલમાં આપણે ક્યારે જોયું નથી કે ડાયરેક્ટર રાઇટર are playing a character. So how did it came into your mind કે like you will play the character best? That is the story you all missed. I was going to say, I'm not. अच्छा બીજું ડિરેક્ટર છે મેં ખીચડી આપી છે, ડિરેક્ટ કરી છે. અમે લોકો બધું કામ એટલું બધું જોડે કરતા તો ઘણા નામોમાં મારો ડુપ્લિકેશન આવી જાય. તો આઈ એમ નોટ ધ ડિરેક્ટર. બટ એઝ અ પ્રોડ્યુસર મારી જવાબદારી બહુ વધારે હતી અને ઉલટાનો એટલે જ એક સ્ટોરી છે. મને ક્યાંય નેક્સ્ટ પ્લેટફોર્મ પર હું ઇટ્સ અ લોંગ સ્ટોરી કે ખાલી કહી દઉં છું તમને કે હિમાંશુ હું નહોતો કરવાનો. ઇમેજિન હિમાંશુ કોઈ બીજો જ એક્ટર કરાવો તો બે એક્ટરને પૂછેલું because they could not. Then I said ચલો મારે કરવું પડશે and that's how then rest is history. So we would like to hear that story. Long story છે વૈભવી. in next your- time because જો અમારે છે ને બધું બહુ લાઇન્ડ અપ છે અને મને બધું આપણું 1 કલાકનું સેશન છે અને we already 8:05. Yeah, So no problem. So if possible on your Instagram you can come live. I will share. I will share it. I will very soon plan it અને પ્રોપરલી મૂકીશ અને મારે ઇન્સ્ટા પર ફેસબુક પર બધે 3-4 દિવસ પહેલા અનાઉન્સ કરીશ કે હિયર માય સ્ટોરી. ઓકે, Yeah, sure. Thank you. પ્લેઝર. Prapti, we'll take a last question from Purvi Joshi. Okay. Please, Purvi Joshi, you can ask your question. I cannot see her. There are so many people, so it's quite difficult to find one. Purvi ji, I can see Purvi. Purvi, please you are ask some unmute. question, Purvi ji. Yeah, Purvi, go ahead. So I'm actually talking from America right now. It's early in the morning. So My goodness. Somebody from US and from people from Dubai. Wow, I loved it. I'm very happy. Yeah. So I It's was actually early morning. yeah, it's early morning right now. Okay.
So I was born in 2004, and that's when Sarabhai came out. But I watched it now in 2020. I'm 15 years old, and I watch it now, and I still find it very entertaining because तब उस जमाने में वो कितना ahead of time था कि मुझे अभी अच्छा लग रहा है, और मेरा छोटा भाई है 9 साल का, उसे भी वो बहुत ही पसंद आता है. तो मेरा सवाल ये था कि आपने 2004 में ऐसा कैसा सोचा कि लाइक द कैरेक्टर जो माया साराभाई का कैरेक्टर है, उन्हें लाइक लास वेगस पता है, शी टॉक्स अबाउट लॉस एंजलिस, शी टॉक्स अबाउट लंदन, और वो खाने के आइटम्स जो भी घर पे बनाते हैं वो सब इंटरनेशनल डिशेस होते हैं. तो आपने उस जमाने में मतलब कैसे सोचा था कि हम इसे प्रेजेंट करेंगे उस ऑडियंस को कि मतलब उन्हें अच्छा लगेगा. एंड इवन मुझे आज भी बहुत ही अच्छा लगता है. आई ऑलवेज लाइक रीवॉच द एपिसोड्स ऑन हॉटस्टार. See, the way, some people in life, you will find them ahead of time. Whenever you interact, in terms of their exposure, पहले उतना exposure internet और ये सब था नहीं कि the information which you have, I will also have, and the other person will also have. तो एक inequality रहती थी, और उसी से एक superiority complex बहुत रहता था लोगों में. माया जैसे कैरेक्टर में बहुत superiority complex रहता था कि भाई वो इतनी दुनिया घूमे हुए हैं, और उसी में तो वो माया, बाकी इसको सब मिडिल क्लास लगता है, उसी में से तो वो पैदा हुआ है. So that is why she was ahead of her time. And the way we always make our program, अभी मैं कह रहा था, अगर आपने पूरा सेशन सुना है तो क्रिएटिवली हमको ये देखना होता है कि हाउ वी आर यूनिक, डिफरेंट, अहेड ऑफ आवर टाइम. और ये जो माया जी है, मेरे जो ये राइटर को प्रोड्यूसर फ्रेंड है आतिश कपड़ा, वो ये उन्होंने क्रिएट किया है कैरेक्टर, उन्होंने सारे कैरेक्टर्स उन्होंने क्रिएट किए. तो वो जो है ना, वो उनके रियल लाइफ फैमिली से कोई है वैसा. आई डोंट से नीड नॉट से मच, पर उन्होंने अपनी जिंदगी में से बहुत किरदार लिए हैं अपने फैमिलीज में से. Okay. Thank you. Thank you all. I think we are running late, so sir, Jatin sir, Anjula ji, can we have now concluding remarks, or what to do now? All right, JD, thank you very much. There are a lot of questions, and I think you can see in the chat box there are quite a few questions we left. All the audience, thank you very much for your active participation, and we are so sorry because JD sir have some commitment at 5:15, as we said that we will be over by 5, but he has extended for us 15 minutes. Thank you very much, JD sir. We have to excuse you all. You can definitely pose a question on his social media. I'm sure that you can write to me, you can follow me on my Insta, which is JD_Majetia. Right. JD_Majetia, and I will try and reply your question. So he will be replying you rather than on this platform. So thank you very much, JD sir, for sparing your time. I would also say follow Fan Ka Fan India, #FanKaFanIndia. You'll get a lot of the kind of content you are interested in. I'm slowly going to start a lot there. So follow this. You'll get maza aayega aapko. Sir, with the audience request, because some of the friends are, as you said, that we have seen that people are from US and from Dubai and other places are also watching this and have been participated in this. So the last I've seen the conversation in the chat box, people have been looking for your courtroom episode, the dialogue when you call. So before we close, I would request on a personal request that if you can say something about that courtroom. So courtroom, no. See, you'll be surprised. I personally do not remember the dialogues which I must have said in the show. And I believe वो dialogue बोलेगा क्या मतलब? It is available on the platforms in a far better way. कि वो अच्छे से shoot हुआ है वगैरह वगैरह है. तो वो बोलता है ना, like linear contract, जो another gem of actor, we passed away, we miss him, the judge. R for dosa. अरे D for dosa. मैं मसाला डोसा की बात कर रहा हूँ. अरे तो M for डोसा हुआ ना, R कैसे हो गया? और वो रवा मसाला डोसा हुआ तो हुआ ना R for dosa. So I would just say that this is like what I would like to say. Sheva, thank you very much. It was because of Sheva, who's a family, and that's how I could connect to you all. And last मैंने बोला था
So I would say something which I feel that I will always enjoy much in a better way, because they're all improvised and that's original. तो आपको बोल सकता हूँ मैं, बापू आज हमारी मुलाकात ऐसी हुई है कि लगे ही नहीं कि मुलाकात हुई है. It's so true that मुलाकात ऐसी हुई कि लगे ही नहीं कि मुलाकात हुई है. Bye bye guys. It was fun talking. Thank you very much, JD. Thank you very much. Thank you, sir, and thank you, JD sir. Thank you, Jatin sir. Thank you, Anjula ji, and thank you everyone for joining us. Thank you, IPPO. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, JD sir. It was pleasure. Bye, Anjula. Bye, Sunil. Thank you, sir. All my friends. Bye bye guys. Bye bye. Sagar. Bye. Thank you. Bye.